لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الخائلون ولا يحسنا أولادون الذي بعده الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته يد ميدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بحجته ونشر الرياح برحمته واتصل بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وأمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين وسيد شباب أهل الجنة. صلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين. على لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام تعریفیں اسی خلاق کائنات کے لیے ہے جس نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار عالم اس قرآن مجید کی سورہ شورى کی 23ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم، اے رسول ان لوگوں سے سوال کرو، علیہ اجرا میری رسالت کا اجرت دے، الا المودۃ فی القربى سوائے میرے قرابت داروں سے مودت ہی میرے تمام محنتوں کا اجرت ہے. اللہ فرماتا ہے کچھ سوال نہیں کرو سوائے اس کے. رسول نے کہیں پر بھی کوئی سوال نہیں کیا، اللہ کے حکم کو پہنچاتا گیا. مگر قرآن میں ایک واحد آیت ہے جو سوال کرتا ہے پروردگار عالم رسول کے ذریعے سے کہ مودت سے، ان کے اقربا سے مودت کرو. مودت کے سلسلے میں کیوں؟ مودت کے سلسلے میں کیوں؟ کیونکہ قیامت تک دنیا قائم رہنا ہے رسول کے بعد، تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہونا ضروری ہے. ہادی اللہ ایک ایک کر کے بھیجتا ہے. وہ ہادی کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ وسیلہ بن کے ہمارے سامنے پروردگار پیش کیا، وسیلہ بنا کر پیش کیا تاکہ اللہ سے آیا ہو وسیلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات دلاتا ہے. ہم اس وسیلے کے ذریعے سے پھر اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ کا رابطہ چاہیے تو یہ وسیلے کو ساتھ ہم رہنا، حبل اللہ المتین، یعنی مضبوطی سے اس رسی کو تھامے رہنا، اس کشتی کے اوپر سوار ہونا ہمارے پر واجب ہے، لازم ہے، تاکہ اللہ تک ہم رابطہ قائم کر سکے، اللہ تک جا سکے. یہ اللہ نے ہم تک آنے کے لیے وسیلے کو بھیجا ہے. ہم اللہ تک جانے کے لیے یہ وسیلہ ہمیں اللہ تک لے جائے گا. جب یہ وسیلے کے سلسلے میں پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ سوال کیوں کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے پہلے ہی کہا کہ سائلہ فلا تنہر، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو اونچی آواز سے مت بات کرو، سائل سے یعنی آہستہ طریقے سے بات کرو، رحم کے ساتھ پیش آؤ. جب عام سائل کے سلسلے میں پروردگار یہ حکم جاری کرتا ہے تو یہ کائنات کا رسول جو ہمیں نجات دلانے کے لیے آیا ہے، یہ تمام احکام لایا ہے، خدا کے قرآن کو لایا ہے، تمام چیزوں کو بتا رہا ہے، نیکیاں بتا رہا ہے، احسان کر رہا ہے، نعمتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے سلسلے میں بیان کرتا ہے. وہ پروردگار عالم کا رسول ہم سے سوال کرتا ہے کہ سیل المودۃ فی القربى، میرے اقربات سے مودت اختیار کرو. جب مودت کی بات آتی ہے تو عربی زبان میں مودت کے 5 حصے ہوتے ہیں، یعنی 5 حصوں میں مودت کو تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا مودت میں پہلا حصہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے محبت، دوسرا پوائنٹ ہے انس، تیسرا پوائنٹ ہے شغف، چوتھا پوائنٹ ہے عشق، 5واں مرحلہ جو ہے پوائنٹ جو مودت ہے. یعنی مودت اعلیٰ درجے پہ فائز ہے. جب محبت کی بات ہوتی ہے تو مودت کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹزم. دل کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کھنچتا ہے، کھینچنے لگتا ہے، یعنی وہ چیز اچھا ہے یا اچھی لگتی ہے، اچھا لگتا ہے، فلاں نعمت اچھا ہے، فلاں رحمت اچھا ہے.
यानी जब देख उसके बाद दूसरे चीज़ों में मसरूफ होने के बाद ये भूल जाता है। इसे मोहब्बत कहते हैं। आम अल्फाज में हम मोहब्बत ही इस्तेमाल करते हैं, मगर मोहब्बत अलग है, इंस अलग है, शगफ अलग है, इश्क अलग है, मोहब्बत अलग है। जब मोहब्बत दिल खींचने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा है इंस। इंस ये है एक चीज को देखने के बाद बार बार देखने को जी चाहता है, उसे इंस कहते हैं। तीसरा शगफ, जब वो चीज को देखने के बाद उठते बैठते उसका तस्वर ख्याल आता है, नजरों में सामने दिखने लगता है, वो शगफ। और चौथा मरहला है इश्क। इश्क ऐसा है कि दूसरा तस्वर नहीं रहता, पूरा उसके ऊपर दिल लगने बैठता है, यानी दूसरे चीजों के ऊपर दिल आमादा नहीं होता, दूसरी चीजों पर रगबत नहीं देता दिल, उसे इश्क कहते हैं। और पांचवा और आखिरी मरहला है मोहब्बत। मोहब्बत ये है, अब तक इंसान उसे देखते रहा, दिल खींचने लगा, उसे देखा, बार बार देखने को, बार बार सुनने को दिल कहा, उसे देखा, उठते बैठते तस्वर करने को दिल चाहा, उसे देखा तो दूसरा तस्वर कुछ नहीं रहा। जब मोहब्बत के मौके में आए तो मोहब्बत हमारा नहीं, हम जो चाहते हैं वो नहीं, हमारा चाहने से मोहब्बत नहीं, सामने वाला क्या चाहता है उसके ऊपर अमल करने को मोहब्बत कहते हैं। यानी हमारा नफ्स कुछ भी नहीं, पूरा मा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, हम कुछ नहीं चाहते सिवाय वो सामने वाला जो चाहता है वो, उसे हम चाहने को मोहब्बत कहते हैं। परवरदिगार ये साफ बताना चाहता है कि रसूल के साथ मोहब्बत करो, मोहब्बत नहीं, इंस नहीं, शगफ नहीं, इश्क नहीं, मोहब्बत चाहता है। ये पांचवा दर्जे का परवरदिगार आलम बता रहा है कि मोहब्बत के बगैर अगर ये आयतें मुकम्मल होती तो मोहब्बत की आयत नाजिल करना परवरदिगार आलम को जरूरत नहीं। ये इताअत, इत्तिबा, ये तमाम आयतें जो नाजिल कराया है, इताअत कर दिए, इत्तिबा कर दिए, तो मोहब्बत की जरूरत नहीं। मोहब्बत ही ये तमाम आयतों का मुकम्मल है। जैसा गदीर के दिन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना कहा है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की मेहनत पूरी, नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत पूरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मेहनत पूरा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का मेहनत पूरा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम का मेहनत, 1,24,000 पैगंबरों की मेहनत मुकम्मल को गदीर कहते हैं। यानी गदीर क्या है? विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यानी बगैर विलायत के कोई चीज मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा विलायत के ऊपर परवरदिगार ने इतना जोर दिया है कि आए रसूल ये नहीं पहुंचाए फ़इल्लम तफ़ल बल्लग़्त रिसालता, ये नहीं पहुंचाए तो कुछ भी नहीं पहुंचाए। लिहाजा विलायत परवरदिगार के यहाँ अहम चीज है। लिहाजा वो विलायत के सिलसिले में परवरदिगार फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा, मेरे खराबतदारों से मोहब्बत करो। मोहब्बत से मुराद वो जो चाहते हैं उसके ऊपर अमल करना, इताअत करना, इसे मोहब्बत कहते हैं। ये पादरी जो मोमिन हुआ, कैसे हुआ? ये बयाना करता था, मौलवी था नसानियों का, बयान करते करते उसे दिल में यह ख्याल आया कि इस्लाम की किताबों पे भी रोशनी डाली जाए ताकि इसके रेफरेंसेस भी हमारी इंजील के साथ मिला के बोले तो थोड़ा बयान अच्छा रहेगा। तो उसने इस्लाम की किताबों के ऊपर तहकीक करना शुरू किया। कुरान पढ़ते पढ़ते जब इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल व इहसान की आयत के ऊपर आया तो सोचने लगा, अल्लाह हुक्म देता है अदल करने के लिए, नेकी करने के लिए, एहसान करने के लिए। तो पता चला ये आदिल मजहब है, अदल वाली मजहब है, ये नेकी वाली मजहब है, क्योंकि वो हुक्म दे रहा है। जब उसने तहकीक करते हुए, रिसर्च करते हुए आगे बढ़ा, बढ़ के किताब लिखा तलाश हक, उसमें तमाम चीजें लिखा है। तो एक मरतबा ये जब मोमिन हो गया तो 70 पादरियों ने उसका हिसार किया, घेराव किया, क्योंकि आज तक हमारे मजहब में दूसरे मजहब के लोग आते हैं, हमारे मजहब वाले ज्यादा नहीं जाते, तू जाके हमारा नाक काट दिया है, लिहाजा ये बता तू कौन से चीजों ने तुझे इस्लाम के ऊपर जाने के लिए आमादा किया है। तो 73 फिरके रहने के बाद भी तू ये शिया फिरके में क्यों गया, ये 4 मासूमीन इस्लाम के फिरके में क्यों गया, मस्जिद यानी मजहब असना शरी में क्यों गया? तो उसने कहा 73 फिरकों को मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं 2 ही फिरके जानता हूं तारीख इस्लाम पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, कि जो रसूल की इताअत इत्तिबा करे, या दूसरे मानों में कहे कि जो रसूल के जनाजे में रहें वो एक फिरका,
जो रसूल के जनाजे को छोड़कर भाग के खिलाफत को लूटने के लिए बैठे वो एक फिरका। यानी पादरी ने 73 फिरके नहीं कहा, 2 फिरके कहा कि रसूल के जनाजे के साथ जो शामिल थे, जो रसूल के चाहने वाले थे वो एक फिरका, जो रसूल के मुखालिफिन थे, रसूल के जनाजे में भी नहीं आए, खिलाफत रसूल खुदा बताने के बावजूद दावत ज़ुल-ए-शिरा में मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कहें कि आप जो मेरे इस तबलीग को साथ देगा वो मेरा वसी होगा, जानशीन होगा और मेरा खलीफा होगा। दावत ज़ुल-ए-शिरा में बता दिए और यहाँ पे आके गदीर में भी बता दिए। कदम ब कदम रसूल खुदा बताते रहे, बताने के बावजूद ये रसूल के जनाजे को छोड़ के खिलाफत के लूटने के लिए बैठे थे। ये एक फिरका है जो रसूल के जनाजे में था, वो एक फिरका। मैं 2 ही फिरकों जानता हूँ। ये 70 पादरी हैरान होके कहने लगे ये 73 फिरके नहीं हैं, होंगे मगर 2 ही फिरके हैं, एक रसूल के जनाजे को साथ देने वाला, एक रसूल के जनाजे को छोड़ने वाला। तो एक मर्तबा एक फिरके में, एक फिक्रे में ये 70 पादरी शिया हो गए, क्योंकि उसके बाद ये समझाने लगा तमाम चीजें। ये 70 पादरी भी जो इसे तनकीद करने आए थे, इसे जलील करने आए थे, वो सब भी अहले बैत के चाहने वाले हो गए। क्यों? क्योंकि सूरे निसा में परवरदिगार आलम फरमाता है 48-49 आयतें, 48 यानी 48-49 के आयतें में परवरदिगार फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह मुशरिक को नहीं माफ करेगा। यानी अल्लाह से जो अल्लाह के साथ शरीक किसी को करेगा वो मुशरिक होगा, अल्लाह उसे इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, उसे माफ नहीं करेगा, उसे बख्शेगा नहीं। अन युश्रक बिही, जो मुझ में किसी को मिलाएगा, शरीक करेगा मेरे साथ। हाँ, वह यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाओ, हाँ अगर वो सिफारिश करे जो मेरी मशीयत जानते हैं, मेरी मशीयत रखते हैं, वो सिफारिश करे तो इसके अलावा दूसरे गुनाहों को माफ करूंगा। वह मैं युश्रिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, जो मैं जिसे नहीं माफ करूंगा, नहीं बख्शूंगा, वो तूफान अजाब में मुब्तला होंगे जो मुशरिक है। वह मैं युश्रिक बिल्लाह, अल्लाह से शरीक करेंगे, अल्लाह को दूसरों के साथ शरीक करेंगे, फ़क़द इफ़्तरा, वो ऐसे शदीद अजाब में मुब्तला होंगे, इस्मन अज़ीमा, अजीम तूफान के अजाब में मुब्तला होंगे। इससे मफ़हूम पता क्या चलता है कि अल्लाह के साथ जिसको शरीक करेगा उसे परवरदिगार बख्शाइश नहीं देगा, उसे माफ नहीं करेगा। हाँ, कहता है कंडीशन रख के, जो मेरी मशीयत जेरे मंशा वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह के मालिक जो है, मिज़दाक जो हैं, वो अगर सिफारिश करे इस शिर्क के अलावा दूसरे गुनाहों को, मैं माफ करूंगा। लेकिन मासूम से पूछा जाता है मौला ये बताइए कि कौन से गुनाह है परवरदिगार नहीं माफ करता, कौन से गुनाह है जो माफ करता है? तो मासूम फरमाते हैं 7 गुनाह ऐसे हैं जिसे परवरदिगार आलम नहीं माफ करेगा। उस अल अकबर कबायर सबा, 7 गुनाह ऐसे हैं जो जिसे परवरदिगार माफ नहीं करता। पूछा जाता है मौला बताइए 7 गुनाह कौन से है? इन्ना शिरका, जो अल्लाह के साथ किसी को दूसरा शरीक करेंगे उसे अल्लाह माफ नहीं करेगा। दूसरा, वह खुत्तेला नफ्सी हर्रम अल्लाह, अल्लाह के मुहर्रम बंदे यानी हुर्मत वाले बंदे, अजीम बंदों को जो खत्ल करेगा नाहक नारवा, उनको परवरदिगार माफ नहीं करेगा। फिर मासूम फरमाते हैं वह यानी वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ जो एहसान नहीं करता उसके साथ भी अल्लाह बख्शिश नहीं देगा, उसे भी माफ नहीं करेगा, उसके साथ भी रहम दिल से काम नहीं करेगा। तो पूछा जाता है वालिदैन से मुराद कौन है या मौला? तो मौला फरमाते हैं कि तुमने नहीं सुना, रसूल ने कहा कि मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, यही वालिदैन हैं। तुम्हारे वालिदैन के अलावा ये वालिदैन अजीम हैं जो इनका हक अदा नहीं करते, उनको भी परवरदिगार माफ करने नहीं करेगा। जो रसूल और अली उम्मत के बाप हैं उनका हक जो अदा नहीं करता उनको भी माफ नहीं किया जाता। और फिर मौला फरमाते हैं
کہ مال یتیم، یتیم کا مال جو غصب کرتا ہے اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا. تو مولا یتیم کا مال سے مراد کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں میری جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرا کا مال جو فدق تھا، اسے جو غصب کیا تھا، یتیم تھی، جناب رسول خدا کا وصال ہونے کے بعد یتیم ہو چکی تھی، ان کا مال جو کھائے ہیں، غصب کرے ہیں، ان کو بھی پروردگار معاف نہیں کرے گا. معصوم فرماتے ہیں. پھر معصوم فرماتے ہیں 5واں پوائنٹ، والفرارو، جو رسول اللہ کا رسول رہنے کے یعنی رکنے کے کہا، ان کو ان کے بات کو نہ مان کے رسول کو چھوڑ کے جو بھاگے، بھگوڑے بن کے بھاگے، فرار ہو گئے، ان کو بھی اللہ نہیں معاف کرے گا. دیکھیے، اور 6واں پوائنٹ معصوم فرماتے ہیں عزت و حرمت جو خاتون کو پروردگار عالم دیا ہے، وہ خاتون کو جھوٹا کہنا بھی یہ شرک میں مبتلا ہے، لہٰذا اسے بھی معاف نہیں کروں گا. معصوم سے پوچھا جاتا ہے اے مولا یہ کس کے سلسلے میں فرماتا ہے؟ تو مولا نے کہا میرے دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دربار میں کھڑا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کھڑے رکھے، بیٹھے کو بھی نہیں کہا، اور اس معصومہ کو عزت نہیں دی، تہذیب سے کام نہیں لیا، تکریم سے پیش نہیں آئے، جھوٹا کہے، ان کا گواہ کو بھی نہیں مانے، وہ بھی مشرک ہے، اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا. اور آخر میں مولا فرماتے ہیں وہ انکار حق اہل بیت، جو حق اہل بیت کو چھینتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اسے بھی اللہ نہیں معاف کرے گا. مولا پھر کون سے گناہ معاف کرے گا اللہ؟ تو مولا فرماتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے گناہ کر کے انسان نادم ہوتا ہے، اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیونکہ جو تم نہیں جانتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہے، جو اہل بیت ہے، وارث قرآن ہے، وارث تمام کائنات ہے، ان سے پوچھو تاکہ یہ بتائیں گے. مولا یہ 7 چیزیں بتا کے ہمیں علم سے مالامال کر دیے ہیں. تو پھر قرآن آواز دے کے کہتی ہے میں ان کے گناہ معاف کروں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان سے کہہ دو جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، انس کرنا چاہتا ہے، شغف کرنا چاہتا ہے، عشق کرنا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، ان سے کہو یحببکم اللہ فاتبعونی، تمہاری اتباع کرو، تم سے محبت کرو، تمہاری اتباع کر کے تم سے محبت کرے تو وہ یغفر، پھر اللہ فرماتا وہ یغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. واللہ غفور الرحیم، میں اللہ بہت غفور ہوں، بہت رحیم ہوں. پتہ چلا جو اہل بیت کے سائے میں آ جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو اہل بیت کو وسیلہ جانتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو اہل بیت کو مودت قرار دیتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پر وہ صاف الفاظ میں قرآن میں بتا دیا کہ کس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیسے معاف ہو سکتے ہیں. عزادارو، تیسری محرم ہے، یہ وسیلے کے اوپر ظالموں نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں آپ سنتے آتے ہیں. آج تیسری محرم جب امام حسین السلام کربلا کے میدان میں آ پہنچے، خیمے نصب ہو چکے اور لشکر یزید نے خیمہ کو فرات کے کنارے سے ہٹانے کے لیے کہا. ایک مرتبہ مولا عباس کو، غازی عباس کو غیظ آ گیا، تلوار نکالی تو امام حسین السلام نے کہا بھیا عباس یہ وقت نہیں ہے، یہ صبر کا مقام ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ خیمہ کو فرات کے کنارے سے نکالو، ہٹا دو. ایک مرتبہ اس میں ادھر 9 لاکھ لشکر تھے یزید کے، ادھر صرف 70 تھے، کیونکہ حبیب بن مظاہر آنے والے ہیں. وہیب کلبی آ چکے ہیں 15 دن پہلے، امام حسین السلام کے خیموں کے ساتھ قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. جو اہل بیت کا مودت رکھے گا، جو اہل بیت کے ساتھ محبت، عشق، انس، شغف
मवद्दत को पाएगा। वो नजात पाने के लिए जनाब हुर ने कदम सामने बढ़ा के दुनिया को दावत दे रहे हैं कि किधर हक है किधर बातिल है। हालांकि हुर एक लश्कर के सरदार थे, उनके साथ उनके भाई उनके बेटा गुलाम भी थे, मगर सबको तर्क करके हुर अलैहिस्सलाम ने सोचा क्यों, क्योंकि जब लगाम फर्श पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुर ने हाथ डाला तो हुसैन ने कहा, अरे हुर तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए। एक मरतबा ये कहना था, हुर अलैहिस्सलाम कांप गए, कहते हैं अरे हुसैन काश तुम्हारी माँ सैयदा ना होती तो मैं भी तुम्हारे नाम वालिदा का नाम लेता। अरब का दस्तूर है कि वालिदा का नाम लेके जलील किया जाता है। तो हुसैन ने कहा, वालिदा को याद करा के इमाम हुसैन इस्लाम हुर को सोचने के लिए मजबूर कर दिए कि किधर हक है किधर बातिल है, किधर अदल है किधर जुल्म है। तो मारिफत दिलाने के लिए इमाम हुसैन इस्लाम ने हुर को यह बात कहा। यह मंतिकाना अल्फाज है इमाम हुसैन इस्लाम के। एक मरतबा हुसैन के बातों के ऊपर जनाब हुर सोचने लगे, सोच के कहते हैं मैं एहतराम सैयदा में कुछ हुसैन के लिए कुछ नहीं कहा। उनके दिल में एहतराम सैयदा है, जिसके दिल में एहतराम सैयदा फातिमा ज़हरा होगा वो नजात का बाइस होगा, उसे नजात को पहुंचेगा, वो उसके ऊपर दोज़ख हराम हो जाएगा, जन्नत वाजिब हो जाएगी। जब नौवीं शबे आशूर के बाद रात गुजरी, फजर के नमाज के लिए हुर उठे, उठ के वजू का पानी गुलाम से मंगवाया, चुल्लू में पानी रखा, चुल्लू में पानी लेके वजू करने के लिए हाथ उठा रहे थे। एक खेमे के पीछे से एक बीबी की आवाज आई कि आए हुर मेरे बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं 3 दिन से, तू पानी जमीन पे बहा रहा है। तो एक मरतबा हुर ने चुल्लू के पानी को जमीन पे छोड़ दिया, छोड़ के इधर उधर देखा, देख के कोई भी नजर नहीं आया। जनाब हुर ने ये सोचते हुए फिर चूल्हे में पानी डाल के कहा, तो दूसरी मरतबा फिर खैमों के पीछे से आवाज आई, पस खैमे से आवाज आई, अरे हुर मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मेरे बच्चे के ऊपर जुल्म करने के लिए आमादा हो गया है। एक मरतबा हुर ने पानी को जमीन पे फेंका, उठा, उठ के खैमे में आए, आके भाई को बुलाया, बेटे को बुलाया और गुलाम को बुलाया। कहते हैं आओ मेरे साथ बाहर, ये खैमे जो नजर आ रहे हैं मैं समझता हूं कि ये खैमे नहीं है, ये जन्नत का नजारा है। इधर जो 9 लाख का फौज हमें दिख रहा है, ये दोज़ख का नजारा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है दोज़ख में कसीर तादाद को भर दूंगा। इधर जन्नत में कम लोग होंगे, लिहाजा ये हक पे है, ये बातें पे है, लिहाजा मैं जाना चाहता हूं, जैसा तुम्हारी मर्जी, तुम को आगाह कर रहा हूं। तो भाई ने एक मरतबा आगे बढ़ के कहा, अरे हुसैन के लिए शहीद होने के लिए तुम तो चले जा रहे हो जन्नत में, हमें दोज़ख में छोड़ के जाएंगे, हम भी अब्बास के ऊपर फिदा होने के लिए आ जाएंगे। लिहाजा भाई ने अब्बास के ऊपर फिदा होने की बात सुना, एक मरतबा मरहबा कहे के खुद ने सीने से लगा लिया। एक मरतबा बेटे ने आगे बढ़ के कहा, बेटे का नाम अली था, हुर के बेटे का नाम अली था। अली ने आगे बढ़ के कहा कि बाबा मैं अली अकबर साहब के ऊपर फिदा होने के लिए तैयार हूं, मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी जन्नत में आने के लिए तैयार हूं। ये दोनों का हाल सुनना था। गुलाम भी आगे वहां कहा, अरे हुर मुझे भी हुसैन का गुलाम बना के लेके चलिए, ताकि मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूं, मैं भी उनके ऊपर फिदा होना चाहता हूं। ये क्यों? क्योंकि जनाब सैयदा के एहतराम जिसके दिल में होगा वो हुसैनी बन जाएगा, वो जन्नती बन जाएगा, दोज़ख से रहा हो जाएगा। ये हुर अलैहिस्सलाम दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं कैसे दोज़ख से जन्नत में कैसे आया। एक मरतबा इसी वजह से तो इमाम ज़माना ने हुर अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। हुर का मरतबा देखिए, इमाम ज़माना वली अल्लाह कह के सलाम करते हैं। वो हुर को जब हुर खेमे के करीब आए तो एक मरतबा जनाब फिजा खेमे से बाहर आके कहती है, हाय हुर, आए हुर, अब्बास की बहन
बिनते अली तुम्हें सलाम कहती है। एक मरतबा ये हुर सुनना था, सर को पीटने लगे, हाय अली की बेटी, ये ऐसा मौका आ गया कि गुलाम को अली की बेटी सलाम कर रही है, अब्बास की बहन सलाम कर रही है। एक मरतबा सर सीना हुर पीटने लगे। अज़ादारो, ये करबला करबला नहीं है। करबला मंतखाना अंदाज से सोचे तो करबला को समझेंगे जब जन्नत की तरफ जाएंगे, नजात पाने के लिए चलेंगे, क्योंकि ये करबला का वाक़या आज का नहीं है। आलम अरवा में परवरदिगार आलम ने नूर के अर्श के ऊपर अल्लाह ने अरवाह को जमा किया, जमा करके एक मरतबा नूर का मिंबर सजाया, नूर के मिंबर के ऊपर शहादत का और शफाअत का ताज रखा। ताज रख के तमाम अरवाह से कहा कि ये जो शहादत के मर्तबे पे जो फाइज होगा उसके सर पे शहादत का ताज और शफाअत का ताज रखूंगा। एक मरतबा एक के बाद दीगर आते गए, तमाम अनबिया आए, आखिर में रसूल का वक्त आया तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उस नूर के मिंबर के करीब आए, आके खड़े थे। एक मरतबा उससे एक और नूर आगे बढ़ा, आके नूर के मिंबर से उस ताज शफाअत ताज शहादत को लेकर रसूल के सर पर रखा। एक मरतबा रसूल ने पीछे मुड़ के देखा तो हुसैन का नूर है। जब हुसैन कहते हैं, नाना मैं ये साथ दूंगा, आप ये ताज शहादत ताज शफाअत के सर पर रख लीजिए। एक मरतबा हुसैन कहना था, ये नूर ने वो नूर को यानी सीने से लगा लिया। अज़ादारो, ये ताज का मिंबर, ये शहादत का मिंबर, ये ताज का, ये ताज शफाअत ताज शहादत, ये रसूल को हुसैन ने पहना के बताया आलम अरवा के कि हम ही करबला में शहीद होने वाले हैं, हम ही अल्लाह के दीन को बचाने के लिए आमादा होने वाले हैं। मरतबा जब हुसैन इस दुनिया में आए, नाजिल हुए, रसूल खुदा का विसाल हो चुका था। एक मरतबा घर में जनाब सैयदा हुसैन हसन ज़ैनब और उम्म कुलसूम रोते बैठे हुए हैं, नाना को याद करते, जनाब सैयदा बाबा को याद करके बैठी हुई थी। एक मरतबा जिब्रील अमीन नाजिल हुए, अल्लाह ने बार दरूद सलाम इनके पैगाम भेजा कि ऐ हुसैन, जो वादा आलम अरवा में नूर के अर्श पे जो वादा किए हैं वो वादे को याद दिलाने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे नाना तो दुनिया से शहीद हो चुके हैं, दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। एक मरतबा हुसैन ने कहा, जिब्रील बताओ क्या बोलना चाहते हैं। एक मरतबा शफाअत के शहादत के किताब को खोला, एक एक औराक को पढ़ते गए, इमाम हुसैन इस्लाम मंजूरी इजहार करते गए, एक एक औराक के ऊपर इमाम हुसैन इस्लाम यानी मंजूरी देते रहे। आखिर में एक ऐसे औराक आए कि जिब्रील कहें कि हुसैन, तुमको नाना का रोज़ा छोड़ना होगा, वालिदैन का घर छोड़ना होगा, नाना का घर छोड़ना होगा। इमाम ने कहा मंजूरी है। अरे हुसैन, तुमको खतरनाक सफर करना होगा, बीवी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ मुश्किलात में मुब्तला होना होगा। हुसैन ने कहा, अरे जिब्रील मुझे मंजूर है। अरे हुसैन, तुम हज को उम्रे से बदलना होगा। हुसैन ने कहा, मैं मंजूर है, मैं हज को उम्रे से बदल दूंगा। एक एक मसाइब जनाब जिब्रील बयान करते गए। जब आखिर में जिब्रील कहते गए, अरे हुसैन, तुम्हें तुम्हारे जवान बेटे का लाशा देखना होगा। हुसैन ने कहा मंजूर है। तुम्हारे भाई का लाशा देखना होगा। हुसैन ने कहा मंजूर है। आखिर में कहा, अरे हुसैन, तुम्हारे 6 महीने का लाल का लाशा देखना होगा। हुसैन ने कहा मंजूर है। आखिरी सफे में एक मरतबा जिब्रील ने एक बात कहा तो हुसैन रोते रोते घर से निकले। एक मरतबा जनाब सैयदा उठी, फिजा जा देखो कि हुसैन कहाँ जा रहा है। एक मरतबा फिजा ने जनाब सलमान को कहा, सलमान, जनाब हुसैन घर से रोते रोते चले गए हैं, कहाँ गए हैं देखो। एक बार जनाब सैयदा मुसल्ला बिछाई, सज्जे में गई, इधर देखा तो सलमान आके कहते हैं, हुसैन रसूल पे रोते हुए बैठे हैं। एक बार जनाब सैयदा सज्जे से उठ के शुक्र अल्लाह कहा। एक मरतबा जब ये बात सुनना था, जनाब ज़ैनब औलिया मुखाम घर से निकली, छोटे छोटे खर्म डालते हुए। उस वक्त इमाम हुसैन इस्लाम का सिन 5 या 6 साल था, जनाब ज़ैनब औलिया मुखाम का सिन 3 साल था। छोटे छोटे खर्मे डालते हैं जनाब ज़ैनब औलिया मुखाम। भाई को ढूंढते हुए नाना के रोज़े में गई। जब नाना से कहते हैं हुसैन के नाना, मैं हर चीज़ को मंजूर किया हूँ, नाना जो मेरे बस में था
तमाम मैं मंजूर कर लिया हूँ, नाना मेरे शहादत के बाद मेरे बस में नहीं है, उसको भी मैं मंजूर कैसे कर सकता हूँ नाना। ये सुनना था। एक मरतबा पीछे ज़ैनब ने इमाम के पुष्प पर हाथ डाला, कहती है भैया मैं साथ दूंगी, तुम्हारे शहादत के बाद जो भी तकलीफें होंगी वो तकलीफें मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। एक मरतबा आवाज़ कुदरत आई, अब अल्लाह यही चाहता है, अल्लाह का इरादा यही है कि जनाब ज़ैनब कुलसूम, जनाब हुसैन के हरमैन तमाम औरतें बच्चे दयार बदयार कूफे से शाम जैसे तकलीफों में जाना अल्लाह को गवारा है। अल्लाह यही चाहता है ताकि इस्लाम बाकी रहे। आवाज़ खुदरा आती है, अरे हुसैन दीन के लिए तुम्हारी शहादत, जब दीन को बचाने के लिए हुसैन की शहादत काम आएगी और ज़ैनब शहादत को बचाने के लिए ज़ैनब काम आएगी। अल्लाह हुसैन के शहादत को बचाने वाली का नाम ज़ैनब है। अल्लाह कई कर जब काफिला मदीने से निकल रहा था, एक मरतबा सवारियां तैयार हो रही थी, हुसैन घोड़ों को मंगाए, नाखों को मंगाए, एक एक बीबी को सवार करा रहे हैं। जब उम्मे फरवा की बारी आई तो उम्मे फरवा को सवार कराने के लिए कासिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जनाब उम्मे कुलसूम को सवार कराने के लिए हजरत अब्बास आगे बढ़े। जनाब एक मरतबा ऐसा वाकया आते आते जनाब ज़ैनब का हाल आया। जब जनाब ज़ैनब सवार होने के लिए आगे बढ़ी तो एक मरतबा हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए थे, हुसैन खड़े हो गए, अब्बास घुटने टेके हुए ऊंट के करीब बैठ गए, औनो मोहम्मद महमूद का पर्दा हटाया, अली बलराम फुफी के दो दानों पकड़ के सामने ले जाने लगे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने इधर उधर देखा, सज्जाद को बुलाया, सज्जाद कहा हो, अब्बास ने आगे बढ़कर कहा कि अब्बास ने आगे बढ़कर कहा शहजादी सज्जाद का तबीयत अच्छी नहीं है, नासाज है, लिहाजा मरतबा क्यों बुला रही हो। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि अब्बास मैं 11 मुहर्रम को देख रही हूँ, 11 मुहर्रम को तुम कोई भी नहीं रहोगे, सज्जाद रहेगा, लिहाजा आज ही सज्जाद को बुलाओ ताकि सज्जाद के जरिए से मैं सवार हो सकूँ। अब 11 मुहर्रम भी आ गया। एक मरतबा जनाब ज़ैनब जब ऊँटों पर चढ़ने के लिए आवाज़ हो रही है, उम्र साहब हुक्म दे रहा है ऊँट लेकर जाओ ऊँट पर चढ़ने के लिए। जनाब ज़ैनब ने सज्जाद को देखा, सज्जाद के गले में खालदार तो, कमर में जंजीर, हाथ में भक्कड़ी, पैरों में बेड़िया। एक मरतबा देख के कहती है, करबला की तरफ देख के कहती है, भैया अब्बास ज़ैनब बूढ़ी हो गई है, सिर्फ 6 महीनों में ज़ैनब बूढ़ी हो गई है, सज्जाद सवार कराने के काबिल नहीं है, मैं कैसे सवार हो जाऊं। परवरदिगार इस खलील अज़ादार को सामीन से ज़ाकिरीन से कबूल फरमा, बानियान मजलिस से कबूल फरमा। हम तमाम को हम गुनाह कबीरा सग़ीरा नसन माफ़ फरमा, हमारे गुज़श्तगान के गुनाह कबीरा सग़ीरा नसन माफ़ फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, नासर में शुमार फरमा। ऐ अल्लाह महबन अहले बैत को ज़ामान में रहना नसीब फरमा। इस वबा से हर बीमारी है तमाम को बीमारी करबला सख्त शफा के लिए आदिला होना नसीब फरमा। उलमा कराम का साया हमारे सरों पर सदो साल रहना नसीब फरमा। रोज़ों की हिफाजत फरमा, आखिरत बखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला